Dear students, good morning. I am Mukesh Asthana, just explaining you the second part of the second chapter, the address of the snapshot. So yesterday we had read up to the page number 12 up to the last one paragraph had been left. So I resume the remaining part. मैं अब उस part को शुरू करता हूँ जहाँ पे कल हमने छोड़ा हुआ था. Just see the page number 12. Last paragraph. After my first visit in vain to Mrs. Darling house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. So as you know that the girl had decided to go first time to Mrs. Darling house, but her visit was useless. उसकी जो visit थी वो बेकार हो गई थी. सो शी इज़ सेइंग दैट आई डिसाइडेड टू ट्राई टू सेकेंड टाइम. मैंने दोबारा वहाँ जाने का निश्चय किया और अब की बार जब वो वहाँ पहुँची सो ए गर्ल ऑफ 15 ईयर हैड ओपन द डोर एंड व्हेन आई आस्क्ड इफ़ हर मदर इज़ एट होम, क्या उसकी माँ घर पे हैं? नो, शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड. एरेंड इज़ द वर्ड, इट्स मीनिंग इज़ वर्ब इन्वॉल्विंग गोइंग आउट ऑफ द प्लेस. जब आप बाहर जाके कोई काम करते हैं या आपका जो जॉब है इट इज़ रिलेटेड टू सम आउटर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड द एरेंड. सो शी सेड दैट माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड. वो बाहर गई हैं किसी अपने अपने जॉब पे काम करने के लिए. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. The girl said that I followed the girl. मैंने उस लड़की के साथ में एक रूम में गई जहाँ पे उसने क्या देखा कि एक मिरर के पास में एक कैंडल होल्डर, हैनुका कैंडल होल्डर. हैनुका इज़ द फीस्ट रिलेटेड टू द ज्यूस. जैसे हम लोग यहाँ दिवाली होती है, इट इज़ कॉल्ड हैनुका. सो कैंडल होल्डर वाज देयर. We never used it because it was much more cumbersome. Cumbersome means very heavy or unmanageable. The girl suddenly recognized that it was in her possession. ये उसी के घर की चीज़ है और हम लोगों ने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत भारी था. उसके बजाय वी यूज़ to do a single candlestick. We used to take the single candlestick. Want you sit down? asked the girl. उसने कहा क्या आप बैठेंगी नहीं? उसने मेरे से पूछा. She held open the door of the living room and I went inside past her. उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई. I stopped and horrified. I was in a room I knew and did not know. मैं वहाँ ही रुक गई. And horrified, she became very much terrified because I was in a room I knew and did not know. अब यहाँ ये जो सेंटेंस आ रहा है कि I was knowing the room and I was not knowing the room. What was it means? इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसे कमरे में थी जहाँ पे उसके घर की सारी चीज़ें तो थीं. So she was knowing due to all these objects which belong to her home, and she did not know because this home belonged to a particular person. She was a stranger to them. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. तो उसने कहा कि मैं ऐसी आर्टिकल्स के बीच में, ऐसी वस्तुओं के बीच में मैं खड़ी हुई थी जो जिसके इर्द गिर्द पूरा स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड एंड शी फेल्ट ऑल्सो समवाट हॉरिफाइड because
क्योंकि जो आपके घर की चीज़ें होती हैं, सपोज़ आपका अपना रूम है, आपकी अपनी चीज़ें हैं, आप बहुत अफेक्शनेटली उसको डेकोरेट करके रखते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें किसी दूसरे के घर में रखी हैं टेस्टलेस वे में, सो इट वुड स्पॉइल योर मूड, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। उसका भी मूड ख़राब हो गया। उसने जैसे ही ये देखा टेस्टलेस वे में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। मगी स्मेल, बैड स्मेल, उमस भरी हुई गंधा ना। I don't know what I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. उस लड़की ने एक चेयर दी बैठने के लिए। I sat down and stared at the woolen table cloth. Woolen table cloth जो था उसकी ओर देखा। I rubbed it. उसने रब किया उसको। Because she was knowing that this particular uh, table cloth belonged to her house. She had a doubt in her mind. I followed the line of the pattern. Somewhere on the edge there should be a worn mark that had never been repaired. उसने मनी मन ये सोचा कि उस पर एक जला हुआ हिस्सा होना चाहिए, बर्न मार्क होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने कभी भी रिपेयर नहीं कराया था। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? तो उस लड़की ने कहा मेरी मदर थोड़ी देर बाद आने वाली हैं, and I have prepared tea for her. Would you like to have a cup of tea? Thank you. Thank you means it is indication of the acceptance. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. उसी अपने मदर की तरह से ही उसकी चौड़ी पीठ थी। She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. तो जिस वाइट पॉट से उसने पावर किया, चाय को उड़ेला, लड़की को ध्यान आया कि इस पे कहीं ये गोल्ड बॉर्डर भी होना चाहिए डेकोरेशन का। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। कुछ स्पून बाहर निकाली उसने। दैट्स ए नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, बिकॉज द गर्ल वॉज इन एन स्ट्रेंज एटमॉस्फियर and she had some strange way there of sitting, so her voice was also somewhat different. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. वो मेरी टी लेके आई और बोली क्या आप इनके बारे में जानते हैं? My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. उसने कहा कि मेरी मदर कहती हैं इस कमरे में ये जो प्लेट टंगी हुई हैं या और भी जो कटलरी है ये सब एंटीक चीज़ें हैं और हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसने कमरे की तरफ इंडिकेशन किया, पॉइंटेड राउंड। सी फॉर योरसेल्फ, अपने आप देखिए। और यहाँ वो लड़की कहती है आई हैड नो नीड ऑफ फॉलो हर हैंड। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसी के हाथ के इशारे की तरफ मुड़ूं। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। तो लड़की कहती है मुझे पहले से ही मालूम था कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उसी के घर की चीज़ें थी। तो जिस प्लेट की तरफ वो इशारा कर रही थी दैट वाज द ब्रॉन्ज प्लेट। प्यूटर मीन्स ब्रॉन्ज और एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, तो कांसे का जो बर्तन होता है उसके लिए, उसकी तरफ उसने इशारा किया। सो द गर्ल फैंसीड, बचपन में उसको ध्यान आया कि वो हमेशा ये सोचती थी कि इस प्लेट के ऊपर यदि एक एप्पल रख दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. Once we even ate off the plate hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. उसने कहा कि इन सारी ये जो प्लेट टंगी हुई हैं इसमें हमने बहुत काम किए हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने इन पे खाना भी खाया है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन बाद में खाना खाने के बाद मुझे लगा कि कुछ कोई स्पेशल चीज़ नहीं है ये।
I had found the one mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. और लड़की कहती है कि मैंने जब रब किया टेबल क्लॉथ को तो वो जो वन मार्क खोज रही थी वो मिल गया उसको. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. उसने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहती हो. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. हाँ, मैंने कहा. लड़की ने कहा कि आप घर की चीज़ों के लिए you become so much familiar that you don't want to, you don't understand the value of them. आप बड़ी मुश्किल से ही उनकी तरफ ध्यान देते हैं. Next page, you only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. क्योंकि वो सारी चीज़ें या तो गायब हो चुकी हैं या आपने उधार में दी हुई हैं लेंटिंग के लिए या आपने रिपेयर के लिए रखा हुआ है उनको. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. अब मैंने अपनी unnatural sound फिर से सुनी और मैं I remember I asked my mother if I would help her polish. एक इंसिडेंट यहाँ दी हुई है कि उसकी माँ ने कहा कि you should help me to polish the silver. बहुत लंबे समय की बात थी ये. Because she had not gone to school because she was not feeling well at that day. So I asked her which silver. सिल्वर से चांदी से क्या मतलब है आपका? And by listening this, her mother became so much surprised at her inability to know that she is not knowing the meaning of the silver. And that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. उनके मदर का मतलब था कि जो डेली यूज़ में जो कटलरी यूज़ होती है वो जो सिल्वर की बनी हुई थी, लेकिन ये फैक्ट लड़की को नहीं मालूम था. The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. मैंने कहा मैं शर्त लगाती हूँ तुमको भी नहीं मालूम होगा. What we eat with? She asked. आखिर क्या मतलब है? आपका मतलब है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल हम डिनर टेबल पे करते हैं. What we eat with? Well, do you know? क्या तुम जानती हो? She hesitated. वो संकोच में पड़ गई. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. वो एक साइडबोर्ड में एक कवर्ड की तरफ गई, ड्रॉअर की तरफ. उसने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, अभी देख के बताती हूँ आपको. और यहाँ से स्टोरी टर्न ले लेती है. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. लड़की उठ के खड़ी हो गई. उसने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गई, अब मुझको चलना चाहिए, मुझे अपनी ट्रेन पकड़ना है. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी मदर का वेट नहीं करना चाहती हैं? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. इसने कहा कि नहीं नहीं, वो नैरेटर ने कहा, उस लड़की ने कहा नहीं अब मुझको चलना चाहिए और मैं अपने आप में रास्ता जानती हूँ, मैं चली जाऊँगी. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoon and forks. तो जैसे ही मैं गली से बाहर निकली या गली में ही थी तो उसको आवाज़ सुनाई दी जिंगलिंग की, खनखनाहट की, स्पून एंड फॉर्क्स की. लास्ट पैराग्राफ. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट. मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. आई हैड बीन एट नंबर 46. एड्रेस करेक्ट था बिल्कुल. बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन लड़की कह रही है कि अब मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lost their value when severed from them. अब देखिए यही इसी का मोरल है कि जब आप किन्हीं अपनी प्रिय वस्तुओं से, एमिएबल थिंग से, एमिएबल आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनसे कट जाते हैं
या वो चीज़ें और किसी के पोजेशन में हैं, तब आपका उनसे उतना अफेक्शन नहीं रह जाता। आप सोचते हैं कि हम लें या ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है इनको। यू सी दैम अगेन इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग, क्योंकि आप उनको स्ट्रेंज सराउंडिंग में देख रहे हैं, आपको लगता है अब ये चीज़ें मेरी नहीं हैं। एंड खासकर पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड to somebody who is no more in this world. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted to the narrow table drawer? और कहती है मैं इन सारी चीज़ों को लेके करूँगी भी क्या अब, क्योंकि जो ब्लैकआउट जो था, ब्लैकआउट के टाइम में केवल अब मेरा रेंटेड रूम है, छोटा सा रूम है जिसमें कि ब्लैकआउट के टाइम के ब्लैक पेपर लगे हुए हैं और इतनी भी जगह नहीं है कि मैं कटलरी को कहाँ रखूँ। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। रिसॉल्व मीन्स टू डिसाइड फाइनली। अब मैंने ये निश्चय किया, राइटर इज सेइंग, नरेटर इज सेइंग, कि आई वुड फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। शायद सारी चीज़ें जितनी भूलनी थी उनमें ये एड्रेस भूलना सबसे ज़्यादा आसान था। So here we end the chapter. So here we end this chapter, the address. Now I want to discuss the first question of the NCERT book. First question: have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? आपको ध्यान होगा कि शुरू में जब राइटर पहली बार पहुंचती है तो मिसेस डॉर्लिंग उससे कहती हैं कि क्या तुम वापस आ गई हो, और आई हो तो वाई यू हैव कम बैक। क्या इससे आपको कुछ स्टोरी का हिंट मिलता है? यस, सम हिंट इज गिवन बिकॉज शी वाज थिंकिंग दैट along with her mother she had been also died, कि इस लड़की की भी मृत्यु हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही वो देखती है she became very much shocked to see her. So this statement gives us a clue about her dishonest intention, because she has kept every valuable thing in her home and she did not want to return it. So when she saw the girl, she understood, वो समझ गई कि ये लड़की अपना अधिकार जताने आई है और इन चीज़ों को वापस लेने के लिए आई है। So she answers in a negative. She refused to recognize her. So this statement gives some clue about the story. Yes, ये बिल्कुल क्लू देता है स्टोरी में। ये क्लू ये है कि उनका ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन हमको पता लगता है कि उनको सारी चीज़ें लौटाने का मन नहीं था। Okay, thank you dear students. If you have any query regarding this, you may ask me any question anytime.